Hello everyone, welcome to this video. This video will be discussing how to prepare for mains answer writing for GS2. In the previous video we have discussed about GS1, and I want to say that it was I got a very amazing response to that video. I got a lot of calls and messages regarding the mains batch. So actually one mains batch we have started in 5th, that is today. It is for my own students, and another batch I'll be starting on 15th of June. It will continue till the mains examination, and it will be alternate day answer writing with all reviews and feedback, extra content, everything. I'll be making a video today or tomorrow, and I'll be sharing it on the YouTube. All the details, all the structure, the schedule, everything will be mentioned in the video. Okay, now let's come back to this video. So here we'll talk about GS2. Here we'll talk about the syllabus, the weightage of each topic wise I have segregated it. Now how static and current affairs will play a big part in GS2 when it comes to GS2. We'll do it from the previous year question analysis, and how content will play a very big part to score 110 plus or 120. Okay, in GS2 it's very difficult to score 120, but if we do it in a very technical way, we can achieve it fine. Coming to the course, first of all, GS2 is divided, like I have divided into polity, then IR plus miscellaneous. In this miscellaneous I will keep schemes, any welfare stuff, civil services, role of civil services in democracy, then normal things like mostly the current issues like any kind of poverty stuff, all these things. Okay, here polity plays a big part. You will come to know why. So here first is Indian Constitution. Now Indian Constitution means everything: fundamental rights, DPSP, everything. Historical underpinnings means all the historical acts, how it was evolution, like the evolve of constitution, like all those amendments, features, everything it will cover. Like the whole constitution it will cover. Anything can come from this part. Like for example, they can ask from fundamental rights, or they can ask from DPSP. So one or two questions you can expect here only from this topic, means Indian Constitution. It can be from a preamble, it can be from basic structure, anything. Okay, fine. Next is union and states. The relationship between union and states, the issues. It means it is mostly related to federalism. Okay, so federalism say you can expect one question, or devolution of powers, finances up to local level. So this whole topic you can expect one or two questions. For example, in 2022 we will check now. One question came from tier 3, that is devolution of powers. So devolution of power questions usually gets repeated. Okay, so if you prepare nicely, tier 3 panchayati raj or municipalities, their problems, what are the issues happening now, like how can it be solved, all those things, plus federalism, cooperative federalism, competitive federalism, everything you can cover from here. This next is separation of powers. Okay, between various organs, executive, judiciary, legislative, the separation of powers, like how it is, like you need to know the article 50, plus you need to analyze whether separation of powers is working or not. Okay, next is comparison of Indian constitution scheme with other countries. For example, 2022 they asked about France. So one question, 100% one question will get from here. They'll ask about, suppose compare the functions of president with our country with the president of France or any other country, they may ask. So one question will come from here. This is a pakka question, one question. Next is parliament and state legislature. For example, here they may ask about governor, state legislature, anything related to state. They can ask about speaker. They can ask about speaker here. They can ask about anything. Okay. Parliamentary privileges they can ask, and what are the issues arising out of it. Next is structure, organization, functioning of executive and judiciary. So here judiciary question will be there. Pressure group question will be there. Okay. Now one question will come from RP Act. Last year also one question came from RP Act. Appointment to various constitutional posts. You can expect a question from Election Commission, one question came. You can expect a question from CAG. CAG question usually alternative year used to come. You can expect a question from Finance Commission. Okay. And statutory regulatory bodies or various quasi-judicial bodies.
in here current affair will, any statutory body which is in news, current affair will come to play here. Okay, so here basically the current affair comes here itself. Now these all are static part, so you have to cover polity very nicely. But yes, current affair you can like for that add on, or you can improve your answer or enhance your answer through current affairs. For example, any new amendment is happening, or if you are doing judiciary, any new judicial verdict given by Supreme Court or a High Court, all these things will come from current affairs. So you have to integrate static with a bit of current affair. Okay, next, government policies, any kind of government policies, they can ask anything. For example, Gati Shakti Yojana, PM Gati Shakti question came last year. Okay, development processes like role of NGO, self-help groups question they may ask. Welfare schemes, any kind of welfare schemes they may ask, anything. Okay, mostly here again the current affair will play a very big part. Here the current affair will play a very big part. Here the current affair will play a big part. Now issues related to social sector like health, education, human issues, these are all general questions. Okay, these are all general. How you write, how you use any new current scheme, how you give a solution, all those things will play a big part in securing marks. Related to poverty, hunger, these are all general stuff. Governance, what is e-governance, citizens charter, all these things also you can do. These are very common stuff. Okay, you can read it from internet. Now we will see how many questions come from which topic. That is more important, so that you focus on those topics more. Role of civil services. Now here these are all IR part. These are all IR. You can expect 4 questions from IR from here only. Any kind of bilateral groupings or multilateral groupings, any agreement, Indian diaspora, geopolitics related to climate change and geopolitics. They may ask about climate change and geopolitics. क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर. इंडिया नेबरिंग रिलेशंस का एक क्वेश्चन आ सकता है. इंडिया श्रीलंका आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा. इंडिया श्रीलंका लास्ट ईयर आया था. I2U2 आया था. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, देयर स्ट्रक्चर मैंडेट, वहाँ से भी इस साल नहीं आया है, पिछला साल, लेकिन उससे पहले आ चुका है. कोई भी UN, WTO, कोई भी ले लो, UN ज़्यादा पूछते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर मैंडेट भी पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द दिस इज GS2. ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट 2020 का वेटेज निकाला है. विल गो थ्रू द क्वेश्चन वन बाय वन. पहले ये देख लेते. देखिए, सेंटर स्टेट से एक क्वेश्चन आया है, गवर्नर से एक क्वेश्चन आया है, जुडिशरी से एक क्वेश्चन आया है, फंडामेंटल राइट्स से एक क्वेश्चन आया है, टायर 3 दैट इज डिवोल्यूशन ऑफ पावर से एक क्वेश्चन आया है, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 2 क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी से 2 क्वेश्चन, RPA से एक क्वेश्चन आया है, फ्रांस के साथ कंपेयर करने के लिए पूछा एक क्वेश्चन आया है, और टोटल IR से 4 क्वेश्चन आया. अब देखोगे ये टोटल मिला के सिर्फ पॉलिटी, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम पॉलिटी. ठीक है, प्लस 4 IR, कितना हो गया? इतना हो गया 16 IR क्वेश्चन आर इजी, इट कैन बी डन. बाकी जो 4 क्वेश्चन है उन्होंने लाइक डिस्ट्रीब्यूट किया है वेलफेयर में, डेवलपमेंट स्कीम्स में, ऑल दीज थिंग्स. ये जो चीज़ हमने पढ़ा ना अभी 16 से लेके ये सब चीज़, यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर. क्योंकि ये जनरल है, हर कोई लिख सकता है. ठीक है, पॉलिटी में आपको डिटेल लिखना पड़ेगा टू गेट मार्क्स. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन दीज पार्ट. ये जो पार्ट है, दीज पार्ट विच वी डिस्कस्ड नाउ, इसको आप अगर अच्छे से करोगे तो 12 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे. उसमें से 10 भी आप अगर अच्छे से लिखते हो, सो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन पॉलिटी. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. आई जस्ट डिस्कस, नॉर्मली मैं बता दूंगा बिकॉज इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करने के लिए अभी टाइम नहीं है, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माई फ्यूचर क्लासेस लाइक अपार्ट फ्रॉम माई द कोर्स विच आई एम स्टार्टिंग ऑन 15th. But I'll be explaining one question in my YouTube so that you know, for those who do not join, they can also know कि हाँ आंसर लिखते हैं कैसे हैं. एक देखिए, द मोस्ट, 1 सेकेंड. ओके, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट. डिस्कस द स्टेटमेंट द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉ. यहाँ पे आपको
सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एनवायरमेंट रिलेटेड वर्डिक्ट सुना है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार उसी पे बहुत सारी चीज़ें बोला। आप शुरू कर सकते हो फ्रॉम मेहटा केस ऑफ 1987, राइट टू एनवायरमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं एनजीटी भी आया है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसका जो अपील वगैरह जाता है, ठीक है, अपील मैकेनिज्म है, हाईकोर्ट को जाता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को जाता है, तो वो सब चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे। और भी बहुत सारे केसेस दे सकते हो, कैसे आर्टिकल 21 को इंक्लूड किया। यहाँ पे भी करंट अफेयर का काम होगा, रिसेंटली कोई केस आप दे सकते हो, तो उस हिसाब से लिखना। ऊपर से ये 10 मार्क का है, तो बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा 150 वर्ड पे। सिमिलरली यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आया है, राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल, लेकिन दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिखोगे, जो एक्सेप्शंस है, इनर लाइन परमिट के बारे में लिखोगे। पहले तो आर्टिकल 19 का वो क्लॉज लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर ट्राइबल्स के अंदर जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट जरूरत है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लागू है, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि इसका पूरा आंसर आपको फंडामेंटल राइट में मिल जाएगा। यू नीड टू हैव ए वेरी ब्रॉड नॉलेज, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज्ड द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट लेवल। मतलब ये पूछ रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, जो टायर 3 आया है, पंचायती हुआ है या फिर म्यूनिसिपल, आपके हिसाब से कितना हुआ है अच्छा। तो आप यहाँ पे अगर बेयर एक्ट पढ़े वेरी इजीली लिख सकते हैं पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द चीज़ तो स्टेट के अंडर में है, ठीक है, तो उतना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है, पर नाम का होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं हो पाता है। टैक्स पावर्स भी उनके पास नहीं है टायर 3 में, तो उस हिसाब से लिखना है आपको। अब डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन पूछा है, एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट पॉलिटी क्वेश्चन है, जो कि लक्ष्मीकांत से भी मिल जाएगा। देखो एक पूछा गया नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है स्टैट्यूटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसका रोल क्या है लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीबीसी। देखिए ये क्वेश्चन सब डायरेक्ट है। अब एक स्कीम के बारे में पूछा है, गति शक्ति योजना के बारे में, तो उसके बारे में लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर, ये करंट अफेयर में रहता है। और देखिए ये एक एक्ट आया है जो कि बहुत पुराना एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी ऑफ 2016, तब न्यूज़ में था। इट रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन रिगार्डिंग डिजेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये पूछा है, इसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट की तरह रह रहा है, कुछ सही काम नहीं कर रहा, तो ये पूरा करंट अफेयर है। आप कहीं पे भी कौन से भी साइट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो जो रिसेंट 4-5 साल में एक्ट्स हुए हैं, उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस, नेगेटिव पॉइंट्स रेडी करके रखिए। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आए इस बार, ये आया है और एक क्वेश्चन भी आया है, आगे पढ़ेंगे। बाकी एक जनरल क्वेश्चन, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डीबीटी इज ए प्रोग्रेसिव स्टेट, बट उसका लिमिटेशंस भी है, डीबीटी का लिमिटेशंस क्या है। फिर इंडिया श्रीलंका रिलेशन पूछा गया, रिसेंट क्राइसिस जो हुआ है, तो ये आप सारे नेबरिंग कंट्री, जैसे कि मैंने बोला एक नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग रिलेशंस, तो यहाँ से इंडिया श्रीलंका आ सकता है, इंडिया नेपाल आ सकता है। तो सारे 5-6 क्वेश्चन जो है, 5-6 नेबर जो है सबके साथ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन यू कैन गेट, ठीक है। तो आईआर से 4 क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन हो गया। बीमस्टेक के बारे में पूछा है, क्या बीमस्टेक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सार्क? What are the similarities, dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? अब सार्क अभी कहीं ना कहीं थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान इशू, तो ये चीज़ उसका जगह ले रही है। उसका पॉजिटिव लिखोगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। क्या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो सकता है? देखिए और एक क्वेश्चन आया है, डिस्कस द प्रोसीड्योर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ द एमपी और स्टेट लेवल अंडर आरपीए। आपको आरपीए एक्ट अगर पता नहीं है, आप इधर उधर लिख के आओगे। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वॉइड? सब आरपीए एक्ट में लिखा है ग्राउंड्स। पूरे ये एक्ट जिसने पढ़ा है वो लिख सकता है। अब देखिए आप पढ़ के नहीं जाओगे तो दोष किसी का नहीं है, बिकॉज क्लियर कट आप अगर ऊपर देखोगे, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है। यहाँ पे मैंने पढ़ा है, अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लिखा है, सैलिएंट फीचर्स, और डायरेक्ट पूछ भी रहा है, डायरेक्ट जो कोर्स में लिखा है डायरेक्ट पूछ रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, रेमेडी क्या अवेलेबल है, ये सब उसके आप पढ़ोगे, आरपी एक्ट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। जब पढ़ोगे थोड़ा इंटरनेट में सर्च कर लेना, रिसेंट केसेस भी मिल जाएंगे। ओके, गवर्नर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एसेंशियल कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा है। इसमें आप जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो भी केस लिखना है, 123 के बारे में जो हो रहा है, जो रीप्रॉमulgation कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, तो उसका वो लिखना है। एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट केस है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, DC वाधवा केस, आई गेस DC वाधवा केस, इफ़ यू रिमेंबर, रीप्रॉमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस से लेके, तो वो भी लिखना है। एक क्वेश्चन आया है, वाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। ये आ गया एक सेंटर स्टेट रिलेशन का एक क्वेश्चन, मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा। इफ यू सी हियर, सेंटर स्टेट का एक क्वेश्चन आएगा, सेंटर स्टेट, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि नेशनल, मतलब आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव लिखोगे, नेशनल पॉलिटिक्स सेंट्रलाइजेशन में क्या क्या पॉजिटिव्स है और उसका नेगेटिव्स भी क्या है, ठीक है। स्टेट ऑटोनॉमी देने से क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, उस चीज़ लिखना है। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एक क्वेश्चन आएगा कोई भी कंट्री के साथ आ सकता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है उसका एग्जामिन कीजिए प्रोसीजर। तो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बात किया, कंपैरिजन विथ फॉरेन कंट्रीज़, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, अग्री, क्योंकि सारे कंट्रीज़ का आप पढ़ के नहीं जा सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का आप एक बार रीड करके जाइए, वहाँ पे ऐसा नहीं कि इस 15 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन से कंट्री से आएगा। फिर भी आप एक 5 से 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का एक लिस्ट बनाइए, उसका कंपैरिजन कीजिए इंडिया के साथ, नोट्स बनाइए। इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वेलफेयर स्कीम्स तो ठीक है, बिसाइड्स वेलफेयर स्कीम्स इंडिया को चाहिए एक डेफ्ट मीन्स स्किलफुल, एक स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए। देखिए स्कीम्स तो है, लेकिन स्कीम्स करने से क्या सच में अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को अपलिफ्टमेंट मिलता है? वो तभी मिलेगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अब इन्फ्लेशन साइड में बढ़ रहा है और वेलफेयर स्कीम्स का क्या फ़ायदा है? अब जितना महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो इसीलिए आरबीआई को जब भी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है या फिर जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेती है, उसको सरकार के फिस्कल पॉलिसी के साथ मिल के कंसल्ट करके देखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो एक बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बोथ पॉलिसीज़, फिस्कल एंड आरबीआई हो या गवर्नमेंट हो, साथ मिल के एक कमिटी बना सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, कमिटी बना के एक लाइक हाउ टू द पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है उनको सच में कैसे उस सर्कल से, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से कैसे बाहर लाना है। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आप आरबीआई के डोमेन दोगे, आप फिस्कल के डोमेन दोगे, ओके। वेलफेयर स्कीम्स भी चाहिए, कभी भी आप कोई भी वेलफेयर स्कीम कर रहे हो, उसको जो पैरामीटर ले रहे हो तो उसको थोड़ा आरबीआई के साथ कंसल्ट करके प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, आपका ओवरऑल नॉलेज देखेगा, ठीक है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? प्रॉपर डेवलपमेंट, ऐसे एक क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट रिलेटेड, तो काफ़ी जनरल, 4 क्वेश्चन जनरल आएगा, 4 से 5 जनरल आएगा, बाकी सब पॉलिटी से आएगा, ठीक है। मतलब 10-12 पॉलिटी से आएगा, 3-4 आईआर से आएगा। देखिए और एक एक्ट पूछा है, तो RTE जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो पूछा, उसका प्रॉब्लम्स क्या है आज के डेट में। वो बोला कि ये अभी भी इनएडुकेट है, तो इसका डायरेक्ट क्रिटिसिज्म पूछा है, जो कि काफ़ी कॉमन रहता है, ये करंट अफेयर के थ्रू ही हो जाती है, जब आप RTE न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी। I2 U2 का डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो न्यूज़ में भी था, अब डायरेक्टली पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, दीज आर ऑल डायरेक्ट, क्योंकि न्यूज़ में है IR। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिखोगे, इंडिया का कमिटमेंट टू एनवायरमेंट रिलेटेड। द पॉइंट इज ये थोड़ा GS3 टाइप का है, लेकिन कोई बात नहीं, IR में भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल डोमेन में या फिर इंटरनेशनल इसमें लिखोगे इंडिया के इंटरनेशनली क्या क्या कर रहा है, पेरिस एग्रीमेंट को भी इंडिया कर रहा है, जो कर रहा है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। न्यूक्लियर की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी में भी इंडिया काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि इंडिया एसोसिएट मेंबर ऑफ हो गया था,
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर हो गया था, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस को स्पीयरहेड कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट को भी कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। सो क्वेश्चंस काफ़ी जनरल है, आप थोड़ा अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो दीज क्वेश्चंस में से अगर आपको स्कोर करना है तो आपको थोड़ा ये जो पॉलिटी का पार्ट सही करना है। देखो इस बार गवर्नर से या दूसरी बार प्रेसिडेंट से आ सकता है, इस बार फंडामेंटल राइट से, दूसरी बार DPSP से आ सकता है, प्रियम्बल से आ सकता है, कुछ और आ सकता है। तो पॉलिटी विल प्ले ए वेरी बिग पार्ट। तो अभी मैं सोर्सेज बता देता हूँ आपको। पॉलिटी के लिए सोर्सेज जो है, पहला पॉलिटी के लिए पहला तो लक्ष्मीकांत है, इंपोर्टेंट चैप्टर्स लक्ष्मीकांत, इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ सुभाष कश्यप, ठीक है, एंड कनेक्टेड विथ करंट अफेयर्स, ठीक है। टॉपिक का नाम मिल गया, टॉपिक करके सर्च करो, टाइप करो UPSC द टॉपिक एंड स्पेस UPSC विल गेट द करंट अफेयर्स, ओके। एंटी डिफेक्शन आ सकता है, ठीक है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो भी आ सकता है। सर्च करके आपको मिलेगा रिसेंट करंट अफेयर का, जो रिसेंट जुडिशरी का जो ये वर्डिक्ट है वो मिल जाएगा। तो हमेशा कोई भी पॉलिटी क्वेश्चन को ट्राई करो 3 चीज़ में बांटने की। एक है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर है तो, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, एक है उसका लीगल एस्पेक्ट अगर है तो, और एक है उसका जुडिशियल एस्पेक्ट और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये 3 हो गया। फिर उसी क्वेश्चन में कंक्लूजन में आपका योर ओन ओपिनियन एक लाइन में से आंसर करके एंड करोगे, ठीक है। ये सोर्सेस हो गया। IR का सोर्सेस ऑब्वियसली करंट अफेयर, बाकी डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह जो है, जो ये 4 क्वेश्चन आए, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर से ही है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप 100 के ऊपर स्कोर कर लोगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।